हेलो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. Darwin. First of all, we have to know about the scientist. The name of the scientist is Charles Robert Darwin, which is born in 1809 and died in 1882. As on the screen you are able to see, the picture was clicked in which year you can say. Just tell me in the comment box. This picture was clicked in which year you have to say. We have started our lecture, that is this English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organism have been gradually evolved over a period of thousands of years from the common ancestor. They require a duration, a max duration, to generate or to specify their one generation to another generation. He has also proposed the theory of natural selection, which is very important for the natural selection of the evolution, and it is considered to be as one of the most important aspect of the evolution. Right now I'm going to tell you some major objects which are Darwin has suggested. Just mention this very important objections which is Darwin given. Just write down it. First observation which is given by the Darwin is natural selection is not only the factor which is responsible for the evolution. Second one is Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. This explanation given by Landmark. The useless and unuseless modification is given by Landmark. This is the next theory of the Darwin. And the last one, that the third one, I'll repeat second one more time because I have just move on second one point. Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. Third main objection which is given by the Darwin is there is no explanation about slow change and abrupt or extreme vast changes. These are the three objects which is given by the Darwin. Before starting this, Darwin has published one book which is titled by Origin and the Species. Just remember this name too. The name of the book which is written by Darwin is Origin of Species. Charles Darwin, or better known as a scientist of Darwin theory or the origination of Darwin theory, had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published his theory which is based on natural selection, which purchased the survival of fittest. For this purpose, he has suggested that natural selection is one of the aspect which is just only the aspect, but it is not the factor which is responsible for evolution. Evolution is dependent on the various things. It is not totally dependent on the natural selection only. Natural selection is one factor which is responsible for evolution. It is not the factor which is responsible for evolution. You know what I mean to say? That is, natural selection is one factor, is only one factor, not just only one factor. It is just a factor which is responsible for evolution. It is not only one factor which is only and only because of that factor only evolution take place. We can't say like that. Darwin also can't say like that. Darwin say that all the organisms which are reproduced prolifically, all the organisms compete with each other in their life threatening manner, and the life threatening manner they have to go with a various competition like death, like suspension of life. As nowadays we are so much terrifically get irritated by coronavirus. So in that, those only patient will be get cured which have their ability to resist those viruses. I'll tell you in detail. देखिए बच्चों, डार्विन ने ये कहा था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ना,
ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का फैक्टर है। ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टर, एक ही फैक्टर ऐसा नहीं है जिस वजह से इवोल्यूशन हुआ, ये उस सारे फैक्टर में से एक फैक्टर है जिस वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। डार्विन ने ये भी कहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है नेचर में, बहुत समय पहले थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए जिनमें उनके साथ फाइट करने की कैपेबिलिटी है, जिनमें उनके साथ रेजिस्ट करने की, खुद की बॉडी को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म जो है वही उस कंपटीशन में टिक पाए। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं करोड़ों लाखों लोगों को कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन अगर हम लोग उसमें एक सबसे बेस्ट बात अगर देखते हैं तो उसमें जो क्यूअर रेट है वो नियर अबाउट 80% है। इसका मतलब क्या है कि 80% ऐसे लोग हैं जो इससे क्यूअर हो रहे हैं, अपनी बॉडी को ये सस्टेन कर पा रहे हैं। डार्विन ने भी यही कहा था, ये भी एक प्रकार का इवोल्यूशन ही हमारे लिए हो सकता है। क्या मालूम इस वजह से हमारी बॉडी और भी डेवलप हो रही हो, हमारे बॉडी में और भी चेंजेस आ रहे हो। सो ये एक जो है ये नेचुरल सिलेक्शन है। उसने यही कहा था, ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर for their life threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which shows modification essential for winning the competition. ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोग उसमें टिक पाएंगे जो उसमें मॉडिफिकेशन दिखाएंगे, जो उसमें सारे मॉडिफिकेशन को डन करेंगे। जिन लोगों के पास ये मॉडिफिकेशन करने का कैपेबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ नेचर में वही जो है एडजस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज ऑल द स्पीसीज, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो नेचर में क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। डार्विन से दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स दो compete with each other, and because of that competition they have went throughout the various modification which are essential for their winning the competition. However, beside the natural selection also plays an important role, because natural selection is only those organisms which are fit to live and the rest perished. The situation and the selection or selected organism can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own species character. देखो डार्विन ने उसके बाद में क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो तो रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट, इनकी वजह से न्यू स्पीसीज भी फॉर्म हो रहे, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज अगर न्यू स्पीसीज फॉर्म नहीं हुए तो उनके बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिवली टाइम लगेगा। सो दैट्स व्हाट डार्विन हैज़ सजेस्टेड कि जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं ये सारे अपने अंदर न्यू कंसेप्ट, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आ रहे हैं। और उसके बाद में उसने ये कहा था कि ड्यूरिंग ये सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए उन सारे एनिमल्स को, उन सारे ऑब्जेक्शंस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन लगा है। यही था डार्विन थ्योरी। इसके बाद में आया लैंडमार्किज्म। जीन बैटपिट्स लैंडमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकर in the living organism are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or lengths of the organism. He called the concept of principle as uses or disuses organs. देखो बच्चों, आज भी हम लोग बहुत ज़्यादा ये बातें मानते हैं, ये हमारे बहुत पूर्वजों से भी ये चलती आ रही है और हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये सारे जो थियरी है, ये सारे जो तथ्य है, ये आज भी हम लोगों को यही बताते हैं। देखिए बच्चे, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग काम नहीं करते वो फिट नहीं रहते, वो भी फिट रहते हैं, लेकिन उन लेज़ीनेस की वजह से क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर ना उस हिसाब से वो चेंजेस होने लगते हैं। और यही चेंजेस लैंडमार्क्स ने यूज एंड डिसयूज़ के बारे में डिवाइड कर करके बताया, जो कि हम लोगों को डार्विन ने नहीं बताया था। लैंडमार्क्स ने क्या किया, उसने एक एग्जाम्पल लिया जिराफ का। उसने ये कहा कि ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले क्या था कि यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे हम लोगों को जिराफ का नेक दिखाई दे रहा है। क्या ये नेक उतना लंबा है जितना आपको सेकंड पिक्चर्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है? जितना सेकंड में दिख रहा है उतना नेक्स्ट वाले में दिख रहा है। जैसे जैसे ये सारे चेंजेस आते गए वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे सेवरल चेंजेस हम लोग देखते गए। तो ये जो नेक उसका इंक्रीज़ हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ कि आज इतना था, कल इतना हो गया, परसों इतना हो गया, तरसों इतना हो गया, उसके बाद में तो ये पता ही नहीं 1 महीने बाद इतना लंबा हो गया। नहीं, इसको ये चेंजेस आने के लिए, जिराफ के नेक के अंदर ये चेंजेस आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और ये
सिर्फ जिराफ के बारे में ही नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जिनके साथ ये हुआ है, लेकिन ये इवोल्यूशन ने उन सारे एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट एक्ट किया है, जिस वजह से सारे एनिमल्स जो है डिफरेंटली चेंजेस हो चुके हैं. ही सेड दैट नेक ऑफ द सेवरल जनरेशन सिमिलरली शोल्डर ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द फ्रीक्वेंटली हैमरिंग मूवमेंट. आपने कभी आयरन स्मिथ को देखा है क्या? अगर आप लोग देखते हो तो आयरन स्मिथ का जो बॉडी होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो बॉडी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग दिखता है. क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली हैमर करता है, कंटिन्यूअसली उसका बॉडी जो है वर्क में रहता है. उसने उस हैमरिंग की वजह से, ना तो सिर्फ उस हैमरिंग की वजह से बट बॉडी मूवमेंट की वजह से भी क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. एंड विशिंग विंग्स ऑफ द बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़. देखो इनके जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईमू और ऑस्ट्रिच है, हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं ईमू भी नहीं उड़ पाता है, ना ही ऑस्ट्रिच उड़ पाता है. और इसी वजह से ऑस्ट्रिच का जो विंग्स है डे बाय डे पोर्शन दर पोर्शन ये क्या होता गया है, कम होता गया है. ये भी हम लोग जानते हैं. बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट मूवमेंट, द बर्ड्स which like emu or any other birds which is they are having the generation. Because of that only the wings of the bird they were get weak, and because of that they were can't be fly in the sky. The bird like swan or duck have become useful swimming due to living in the water. The snake have lost their legs by modification in their body for borrowing habit. All these examples are the type of acquired characteristics are transferred from one generation to another generation. This is called theory of inheritance. Okay, write down the definition. Acquired characteristics which are transferred from one generation to other generation called theory of inheritance. This is the landmarks theory. You can see over the important point of landmarks which I have indicated over here. You just write down this point in your notebook up to first, second, third, fourth and fifth points. Next, अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मैं जिराफ के बारे में और एक बार आता हूँ, बट उसके पहले हम लोग अगले पॉइंट पे मूव करते हैं. दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऑफ देयर degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those characteristics from generation to generation was rejected because it has been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation, and thereby landmark theory was disproved. The living organism can transfer the characteristics which has acquired to the next generation. This is called anericity of the acquired characteristics. You know, in that he is landmark theory was disproved because of it has been verified many times that modification brought in use as not transferred to the next generation. That's why his theory was disproved. In India also, next specification, formation of new species of the plants and animal is the effect of evolution. Species of the group of organism that can be produced filtrate individual. Therefore, the natural reproduction each species growth in the specific geographical condition. Their food habits, reproductive ability and the period of difference. However, genetic variation is responsible. For that we can take the best example is cactus. You know, कैक्टस आप लोग अगर कनाडा में उगाने की कोशिश करोगे, उगेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको वहाँ पे उस हिसाब से उसका कंडीशन नहीं है, उस हिसाब से उसका वेदर कंडीशन नहीं है, जिस वजह से कैक्टस को वहाँ पे उगाना जो है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. लेकिन उसी की जगह पे कैक्टस को अगर राजस्थान की जैसे डेजर्ट में उगाओ बोला तो यू कैन ईजिली ग्रो कैक्टस इन द डेजर्ट. वाई सो? बिकॉज वहाँ पे उसको वैसा नेचुरल सिलेक्शन मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट उसको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है, जिस वजह से उसके अंदर सिमिलरिटीज़ और जियोग्राफिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी वहाँ पे लीड करता है, जिस वजह से न्यू स्पीसीज़ क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. अब हम लोग आते हैं लैंडमार्क्स के नेक के ऊपर. जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक मैं देश का नाम नहीं बता नहीं सकता. एक ऐसा देश है जहाँ पे लेडीज़ लोग जो हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं,
नेक के अंदर ना रिंग फंसाती है और अपने नेक का साइज जो है वो एक्सटेंड करती है। वहाँ पे इसको खूबसूरत कहा जाता है, मतलब ऐसा प्रोसीजर करना खूबसूरत माना जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके नेक जो है नॉर्मल नेक्स के कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा बड़े आ रहे हैं। ये इसका प्रूफ हम लोग दे सकते हैं कि जो कंटिन्यूसली अगर हम लोग हमारे बॉडी में सेवरल चेंजेस देखते जाएंगे तो हम लोगों की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। बच्चों इतना ही नहीं, अगर आप लोग अपने हाथ में कोई अंगूठी पहनते हो, एक बहुत ज़्यादा साल के लिए अगर आपने 10-12 साल के लिए अगर अंगूठी अपने हाथ में पहन ली, तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि उस अंगूठी के नीचे बहुत बड़ा निशान बन जाता है। और उस निशान की जगह पे है ना, हमारा जो मतलब जो बॉडी का पोस्चर है वो पोस्चर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये भी एक प्रकार का हम लोग एविडेंस ले सकते हैं इवोल्यूशन के लिए। दिस इज़ ऑल्सो टेकन एज अ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। सो दीज आर द मेन एस्पेक्ट विच इज़ डिस्कवर्ड बाय लैंडमार्क्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन एंड डार्विन थियोरी। So I hope you understood all the concept. If you have a doubt, so you know what you have to do. You have to just comment in the comment box. Otherwise you can follow, share, like and turn on the bell notification by subscribing my channel. Thank you.